In this session, we will be discussing about one compartment open model IV bolus administration. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, starting with the introduction, the one compartment open model offers the simplest way to describe the process of drug distribution and elimination in the body. The model assumes that the drug can enter or leave the body, that is, the model is open and the body acts like a single uniform compartment. तो इसके अंदर मॉडल के अंदर क्या है कि हमारा जो बॉडी है पूरी की पूरी एक सिंगल कंपार्टमेंट की इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है बॉडी के अंदर। जैसे कि एक बीकर के अंदर पानी है या बाल्टी के अंदर पानी है, ऐसे ही हमारी बॉडी है। उसके अंदर जब आप ड्रग को डालते हो, जैसे बाल्टी में पानी में आप ड्रग को डालोगे तो वो एकदम से सारी में एकदम से घुल जाएगी। तो उसका क्या मतलब, ऐसे ही बॉडी के अंदर जब आप ड्रग को डाल दोगे तो वो एकदम से सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए इसको वन कंपार्टमेंट मॉडल कहा जाता है। ओपन इसलिए कहा जाता है कि ड्रग इज फ्री टू ड्रग कैन एंटर और लीव द बॉडी, आ भी सकती है और बॉडी में से जा भी सकती है। द सिंपलेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ मॉडलिंग परस्पेक्टिव is a rapid intravenous injection also known as IV bolus. So IV bolus is the injection which is given in a very short period of time. एकदम से जब आप एक पूरे डोज को बॉडी में एकदम से इंजेक्ट कर देते हैं वेन के अंदर, उसको कहते हैं IV bolus injection. The simplest kinetic model that describes the drug disposition in the body is to consider that the drug is injected all at once into a box or compartment and that the drug distributes instantaneously and homogeneously throughout the compartment. Drug elimination also occurs from the compartment immediately after injection. तो एक बार ड्रग एक कंपार्टमेंट जैसे सिंगल बॉक्स है या बीकर है उसमें डाल दी तो एकदम से वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद एलिमिनेशन भी उसमें से फिर स्टार्ट हो जाती है साथ ही। सो दिस इज द डिपिक्शन ऑफ मॉडल। सो एज वी कैन सी डेट देर इज नो इनपुट कांस्टेंट। इनपुट कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है जो एग्जिट का है, डेट इज द, इसमें मॉडल में के उसको शो करा गया है क्योंकि कुछ बुक्स के शो करती हैं, कुछ बुक्स में आपको के ई मिलेगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है द फार्माकोकिनेटिक मॉडल फॉर अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय अ रैपिड इंट्रावेनस इंजेक्शन। सो इसके अंदर डीबी is the drug in body, it is also known as X. Vd is the apparent volume of distribution. Ke or K is the elimination rate constant. In the body, when drug is given in the form of IV bolus, the entire dose of drug enters the bloodstream immediately and the drug absorption process is considered to be instantaneous. तो instantaneous होती है डिस्ट्रीब्यूशन, कोई उसके अंदर देर नहीं होती। इसलिए जो आपका इनपुट का कांस्टेंट है वो इसके अंदर नहीं होता क्योंकि कोई रेट उसके अंदर होता ही नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस होता है। इन मोस्ट केसेस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम to potentially all the tissue in the body. Uptake of drug by various tissue organs will occur at varying rates depending on the blood flow to the tissue, the lipophilicity of the drug, the molecular weight of the drug and the binding affinity of the drug for the tissue mass. तो depending upon the nature of drug उस हिसाब से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस टिश्यू में जाती है वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। Most drugs are eliminated from the body either through the kidney or being metabolized in the liver. तो या तो लीवर उनको मेटाबोलाइज करता है या फिर किडनी के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी में से। Because of rapid drug equilibration between the blood and tissue, drug elimination occurs as if the dose is all dissolved in a tank of uniform fluid, a single compartment from which the drug is eliminated. तो एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया ब्लड और टिश्यू के बीच में, फिर एलिमिनेशन सारी कहाँ से होती है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में से, क्योंकि पर इसमें तो एक ही कंपार्टमेंट है तो वही एक टैंक है जो जहाँ से सारी एलिमिनेशन होनी है। द वॉल्यूम in which the drug is distributed is termed as the apparent volume of distribution, also known as Vd. The apparent volume of distribution assumes that the drug is uniformly distributed in the body.
The VD is determined from the pre-injected amount of dose in the syringe and the plasma drug concentration resulting immediately after the dose is injected. तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करना है तो एक डोज दो IV बोलस के थ्रू और प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन कर लो, तो आपकी जो x इजिकल टू वी डी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके आप VD को निकाल सकते हो। तो VD इजिकल टू x अपॉन सी। x क्या है? ड्रग, कितना डोज आपने दिया, और डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन x नोट अपॉन सी नोट। तो जितनी आप ड्रग बोलस से दोगे डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, that will give you the volume of distribution of a drug. The apparent volume of distribution is a parameter of the one compartment model and governs the plasma concentration of drug after a given dose. A second pharmacokinetic parameter is the elimination rate constant K, which governs the rate at which drug concentration in the body declines over time. तो किस रेट पे बॉडी में से ड्रग हमारी कम हो रही है, उसको जो पैरामीटर गवर्न करता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के और के ई। सो नाउ वी विल डिस्कस द डेरिवेशन फॉर वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV bolus administration. So in this we will see how we can derive a equation. So the rate change of drug in body is equal to rate of input minus rate of output. As there is no rate of input involved, the equation becomes rate माइनस रेट ऑफ आउटपुट। तो सिर्फ जो रेट ऑफ आउटपुट है वही इसमें रह जाता है, इनपुट कोई है ही नहीं। सो dx by dt, स्मॉल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन एक्स, सॉरी माइनस के ई इंटू एक्स। dx by x इज इक्वल टू माइनस के ई dt। तो ये इधर से इसको चेंज कर लिया है इक्वेशन में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो उसके बाद आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अप्लाइंग लिमिट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x नॉट टू x एंड राइट हैंड साइड 0 टू t। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको लिमिट्स को, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी और जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ln x माइनस ln x नॉट माइनस इज इक्वल टू माइनस के ई टी माइनस 0। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ln x माइनस ln x नॉट इज इक्वल टू माइनस के ई टी, ln x इज इक्वल टू ln x नॉट माइनस के ई टी। तो इसको इधर से इधर ले गए हैं सिर्फ। दिस इक्वेशन कैन नाउ बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल और कॉमन लॉग फॉर्म। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये वाली, इसको चाहे तो आप कॉमन लॉग फॉर्म में यूज कर लो, चाहे इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट रेज टू द पावर ln x नॉट माइनस के ई टी। इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू e रेज टू पावर ln x नॉट इंटू e रेज टू द पावर माइनस के ई टी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो नेचुरल लॉग है और e है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो इक्वेशन बचती है वो होती है आपकी x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के ई टी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज x इज इक्वल टू वी डी। अब हमें ये पता है कि जो आपकी बॉडी में ड्रग की कंसेंट्रेशन होती है वो किसके रिलेशनशिप में होती है, वो होती है अमाउंट x और जो कंसेंट्रेशन है दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी x, advantage is taken of the fact that constant relationship exists between drug concentration in plasma concentration, और ये एक इजिली मेजरेबल होती है, इसको आप मेजर कर सकते हो। एंड एज VD इज कांस्टेंट, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब क्योंकि VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक ड्रग की कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती, तो VD कांस्टेंट हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी C, x इज इक्वल टू C। तो इसको हम जहां पर x था वहां पर C लिख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी C इज इक्वल टू C नॉट e रेज टू द पावर माइनस के ई टी। द अबव इक्वेशन शोज
that disposition of a drug that follows one compartment kinetics is mono exponential। तो मोनो एक्सपोनेंशियल से मतलब होता है आपका कि सिंगल एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो वहीं पर जैसे यहाँ एक्सपोनेंट में चेंज करा, ऐसे ही हम इसको कॉमन लॉग की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, क्योंकि ग्राफ्स पे फिर प्लॉट करनी होती है, आसान हो जाती है अगर कॉमन लॉग फॉर्म में उसको हमने प्लॉट करना हो। सो ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग बेस 10 का होता है जो लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। log x is equal to log x naught minus ket upon 2.303 as x is equal to vdc or vd is constant, log c is equal to log c naught minus ket upon 2.303। so this is a equation of straight line। अब इसके अंदर जो आपका t है, t is the x, ये x है आपका, और ये जो कंसंट्रेशन है ये आपका y है, ये आपका इंटरसेप्ट है log c naught, ठीक है, और के ई अपॉन 2.303 ये वाला हिस्सा है जो माइनस के ई अपॉन 2.303, दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें हम ग्राफ बना सकते हैं। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग log concentration वर्सेस टाइम, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप गिव्स द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट दैट इज माइनस के ई अपॉन 2.303 इज इक्वल टू स्लोप। तो ये आप देख सकते हो, दो हमारे पास ग्राफ हैं, एक आपका सेमिलॉग ग्राफ है। सेमिलॉग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपका वाई एक्सिस है ये लॉग फॉर्म में होता है, और जो आपका एक्स एक्सिस होता है ये सिंपल होता है। तो इसका जो ग्राफ आता है, इसका जो स्लोप होता है नेगेटिव होती है, इसलिए ऊपर से नीचे को आती है, और जो वैल्यू ऑफ स्लोप है उससे आप क्या निकाल सकते हो, माइनस के ई। तो माइनस के ई, क्योंकि स्लोप माइनस में है तो माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका के ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के ई इज इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303। तो इससे आप इसके अंदर के ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इधर दूसरा ग्राफ है जो ये रेगुलर ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, कार्टेशियन जो पेपर होता है अपना टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसके अंदर एक कर्व आ रहा है। तो ये जो कर्व है, अगर हमारे डाटा का जो डाटा हमें मिला है उसका लॉग फॉर्म का ग्राफ है, जो सेमिलॉग ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इट मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, और अगर उसका लॉग फॉर्म का ग्राफ कर्व हो देन इट मींस इट इज अ जीरो ऑर्डर प्रोसेस। तो ये बात काफी ध्यान रखने की है। इसके अंदर आप आगे प्राइमरी पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड बेटर कॉल्ड एज ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं इसके अंदर कौन कौन सी हैं, जैसे के ई का, बड़े ई का मतलब है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, के छोटे ई का मतलब है एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, के एम का है मतलब मेटाबॉलिज्म, के का मतलब है बाइलरी एक्सक्रीशन। तो इस तरह से सारे और भी जितने सलीवा में कोई एक्सक्रीशन हो रही है, सारे एलिमिनेशन के जो मेथड्स होते हैं वो सारे इसमें सबको यूनाइट करके एडिटिव एडिशन करके जो कांस्टेंट बनता है डेट इज ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। इसके यूनिट्स होते हैं पर आवर और पर मिनट, पर आवर और या फिर पर मिनट। इसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन हाफ लाइफ, जिसको टी हाफ भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी as well as plasma concentration to decline by 1/2 or 50% of its initial value. Units is hour और minutes। तो टी हाफ का मतलब होता है कि बॉडी में से 50% आपकी ड्रग जब डिक्लाइन हो जाए वो टाइम को कहते हैं हम टी हाफ। तो जैसे इनिशियल अमाउंट मान लो 100 mg है, तो मान लो उसका आधे घंटे के बाद जो अमाउंट रह गया वो रह गया 50 mg रह गया बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो हाफ लाइफ है डेट इज 30 मिनट्स। आधे घंटे के बाद आधी ड्रग आपकी बॉडी में से निकल चुकी है। अगले आधे घंटे के बाद क्या होएगा, 50 mg में से 25 mg रह जाएगी। फिर अगले आधे घंटे में क्या होएगा, 25 mg में से 12.5 mg रह जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके सिर्फ हाफ ही पोर्शन एक हाफ लाइफ में ड्रग का निकल सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो ड्रग है सारी निकल जाएगी बॉडी में से, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। इसकी जो टी हाफ होती है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस की,
that is equal to 0.693 अपॉन के ई। और अगर के ई इज इक्वल टू जो होती है क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस इज इक्वल टू के ई इंटू वी डी, जो आपकी क्लियरेंस सी एल टी ये होती है आपकी के ई, इस पर थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, के ई इंटू वी डी। तो इसको हमने वैल्यू को यहां पर डाल लिया है, तो ये बन गया आपकी वी डी अपॉन 0.693 वी डी अपॉन क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस। इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम पहले भी डिस्कस करा कि कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं। द बेस्ट वे टू एस्टिमेट वीडी ऑफ अ ड्रग इज टू एडमिनिस्टर इट एज अ रैपिड आईवी इंजेक्शन। सो इक्वेशन कैन बी यूज वीडी इज इक्वल टू एक्स नोट अपॉन सी नोट।